Okay, today we're going to talk about another type of question that's called matching information. Yesterday we studied matching headings, and today we are going to talk about matching information type of questions. Okay, first of all, let's differentiate matching information from that of your matching heading type of questions. First of all, matching headings, you do understand, Claire, a heading to a paragraph, the way we did yesterday. A heading to a paragraph. We match a specific heading, Claire, to a paragraph. And when it comes about matching information, so we match specific detail, Claire, specific detail to a paragraph. So the difference is what heading to a paragraph and the second one that's a detail to a paragraph. So in both of them, there is a slight difference. If you remember, we studied that we need to understand a type of paragraph. So a paragraph consists of topic sentence, then number one, number two, explanation of topic sentence, number three, example, and number four, summary to conclude that. Our heading type of question, we may find out either in topic sentence or in summary. While that of your specific detail, if you want to look for that, Claire, so you won't find out specific detail in topic sentence, but you may find it in your explanation portion or that of your example part. So these are the two things, number one. Number two, uh, we look forward for the main idea that what heading may like Claire suit the paragraph. And for this paragraph, we do not Claire look for the main idea, but we look forward for specific detail inside paragraph. Like this part is the inside. Can you see? This is the inside of the paragraph. And then this one, it is used only once, like one heading per paragraph. One heading per paragraph, because we cannot use Claire two headings for one paragraph. यो एक हेडिंग का मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ, क्योंकि एक पैराग्राफ एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. It represents only one specific idea, not two ideas. So that's why we can use matching headed type of questions, one heading per paragraph. But when it comes about matching information, so डिटेल में दो इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं. मतलब एडवांटेजेस के बारे में. सो एडवांटेजेस तो यहाँ पे मतलब इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द हेडिंग, सो हेडिंग द पैराग्राफ कैन बी ओनली अबाउट एडवांटेजेस, राइट. लेकिन हमारे पास डिटेल में दो एडवांटेजेस हो सकते हैं, एडवांटेज वन एंड एडवांटेज टू इन डिटेल. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज मोर देन वंस. कि मतलब एक पैराग्राफ में हम दो इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जवाब जो है, वन ऑफ द आंसर वी मे हैव इट फ्रॉम द explanation, but the second one, the second answer is related to evidence, the second answer related to an example. Clear? So we can find one in one paragraph we can find out two information. So for that purpose, you need to read the instruction. If the instruction talks about, you may use Claire one like a paragraph for more than one statement. So then it means that we can use two statements for one paragraph. Then in that case, and then what you read topic sentence and last sentences. But now here you read what? You read every sentence, and every sentence, more importantly, what? Explanation and example. You hunt for detail. You don't hunt for the summary. So what is the primary skill and your matching heading type of question? That's more about summarizing. But over here, paraphrase, recognition plus scanning for specific detail. Clear? So we will move on and let's study it a bit more in detail. Okay, this slide is the most important one. This is the most important, like 8 signals. Clear? We call them decoders, 8 type of decoders. The questions, Claire, we have got 8 decoders, and you are supposed to understand, Claire, what I mean by decoders. The first one, your paragraph, Claire, your paragraph that can be or statement you're looking, जो information आप देखना चाहते हैं किसी paragraph में,
द स्टेटमेंट माइट बी रिलेटेड टू डिफिनीशन, कि आप जाके वहां पे इस चीज का डिफिनीशन देके। तो डिफिनीशन के लिए हमारे पास जो चीज होगा वो होगा, मतलब रेफर्स टू, एक्सप्लेन्स, मीनिंग ऑफ, व्हाट इज, और एक्सप्लेनेशन डिफिनीशन डैश के साथ भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इफ देयर इज अ डैश, तो डैश ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पार्ट, आपने सवाल को देखना है कि मैंने किस चीज को देखना है, एंड इट माइट बी अबाउट रीजंस, कि आप रीजन ढूंढने हैं। तो रीजन के लिए हमारे पास डिकोडिंग वर्ड्स क्या है, वाई, रीजन फॉर, बिकॉज, काज, या आपसे मतलब एग्जाम्पल ढूंढ, एग्जाम्पल पूछा गया होगा। अच्छा, एग्जाम्पल से मुझे याद आया, एग्जाम्पल में आप लोगों ने दो चीजों का ख्याल रखना है। एग्जाम्पल रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन, specific individual. This example can be related to specific individual as well. मतलब एक बंदे के बारे, फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस टू अ पर्सन, इफ आई से रेफरेंस टू अ पर्सन, तो अब यहां पे जो रेफरेंस दिया हुआ है, क्लियर, तो एक बंदे का एग्जाम्पल मिला है। लेकिन अगर ये ऐसे कहे कि रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर मैंने रेफरेंस किस चीज के रिलेटेड ढूंढना है, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। सो यहां पे हो सकता है कि एग्जाम्पल सच एज, इंस्टेंस, दीज आर द वर्ड्स यू अंडरस्टैंड, लाइक आई एम लुकिंग फॉर एग्जाम्पल। देन आपका इंफॉर्मेशन कंपैरिजन से रिलेटेड हो सकता है। कंपैरिजन का मतलब है कंपेयर विद, अनलाइक, वर्सेस। सो दीज आर द वर्ड्स यू अंडरस्टैंड, दीज आर द डिकोडिंग टाइप्स, क्लियर। क्वेश्चन हमारे पास 8 टाइप्स के हो सकते हैं। और अपनी, जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि अच्छा, पहले सवाल को डिकोड करे। तो डिकोड में आपने मुझे बताना है कि सर ये रीजन पूछ रहा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, या इसमें कंट्रडिक्शन होगा। कंट्रोडिक्शन का मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट। तो चैलेंजेस का मतलब क्या है, कंट्रैक्ट, कंट्रोडिक्ट्स का या डिसअप्रूव्स का, डिसएग्रीज का। सो दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डिसएग्रीमेंट। एंड इट कैन बी अबाउट स्टैटिस्टिक्स, मतलब अगर आपसे कोई परसेंटेज के बारे में पूछा जाए, 10%, 15%, क्लियर, तो पर नंबर, परसेंटेज, जो प्रोपोर्शन होगा, हाफ, तो हाफ क्या है, प्रोपोर्शन। तो इन चीज से आप लोगों को पता चल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर एनी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और फिर आप लोग के पास हो सकता है प्रोसेस, how, steps, process of. So these are the important points that you are looking forward for the इसका जो process होगा, method होगा, वो आपने ढूंढना है। And the last one, it can be about what, opinion, argues, claims or beliefs। तो इन अल्फाज से हमें पता चल रहा है कि if you decode, you're looking for any of the opinion। तो हमारे पास टोटल डिकोडिंग जो टाइप डिकोडर हो सकते हैं इस चीज के लिए, वो हमारे पास है, how many type of question, they are 8। Let's study them one by one and I will ask you, clear? अच्छा, फिर कुछ चीजें यहाँ पे देखे कि पैराफ्रेज पैटर्न यू मस्ट नो, दिस इज समथिंग लाइक इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। कि नाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ नाउन, सो दे कैन यूज डिफरेंट नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, दे हैव रिटन कॉस्ट, तो कॉस्ट की जगह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट प्राइस, एक्सपेंसेस। वर्ब हो सकते हैं रिड्यूस, तो कट, लोअर, श्रिंक। तो बी केयरफुल विद दीज थिंग्स, क्लियर। एक्टिव और पैसिव में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव डबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, इजी, तो इजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट मिला है, लेकिन डिफिकल्ट नेगेटिव वर्ड है। लेकिन नॉट को देखे तो डबल नेगेटिव, निगेशंस हमने पढ़े थे ऑलरेडी, यू पीपल अंडरस्टैंड दैट। अगर व्हीकल्स है तो वो कन्वर्ट कर सकते कार्स और ट्रक्स में। स्पेसिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन आपको याद होगा। एप्पल एंड सैमसंग, क्लियर। अब यहाँ पे देखे एप्पल एंड सैमसंग, तो ये क्या है, स्पेसिफिक वर्ड्स है, क्लियर। सो देन दे कैन कन्वर्ट टू जनरल टर्म्स। मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ का मतलब क्या है, ये कौन सा, किस चीज से रिलेटेड है, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। वो लिख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ। और फिर हेजिंग वर्ड्स हो सकते हैं, वेल, मे, माइट, कुड। सो बी केयरफुल विद देम, ओके। अच्छा जी, लेट्स टेक एग्जांपल। अब सपोज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। टर्न ऑन योर माइक्स प्लीज, लेट्स हैव डिस्कशन। सबसे पहले आप लोगों ने किस चीज को देखना है, यू नीड टू रीड द बस स्टेटमेंट। दैट्स माय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट को आप लोगों ने पहले डिकोड करना है, स्टेटमेंट को, कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप लोग को किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे क्या चीज आप लोगों ने ढूंढना है। डिफिनीशन। डिफिनीशन है ना, इट्स ऑल अबाउट डिफिनीशन, राइट। डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन आप लोगों ने रेफर्स टू
क्लियर, एक्सप्लेन्स, डिफाइंस, ये एक्सप्लेनेशन वर्ड्स है। अब नीचे आके पैराग्राफ को रीड करें कि कहां से आप लोग को पता चल रहा है कि ये टेक्निकल टर्म यूज इन रोबोटिक का डिफिनीशन है। कहां से Proprioception, कहां sir. कहां से पता चल रहा है? Proprio. after मैंने the शुरू में आप लोगों ability. से कहा कि डिफिनीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डैश। कैन यू सी दिस डैश? Dash, yeah. Yes, sir. तो ये The इसका ability डिफिनीशन है, yes, sir. ये डिफिनीशन है। कहां से पता चला? डैश से। तो मैंने शुरू में क्या डिकोडिंग के लिए कि डैश व्हाट इज मोर, ठीक है ना? सो मेक श्योर सेंट्रल टू दिस एक्सपेंशन इज द कांसेप्ट ऑफ, क्लियर? तो इसका डिफिनीशन द एबिलिटी ऑफ व्हाट? रोबोट। तो यहां पे कुछ भी आपको डिफाइंस या कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन डैश जब भी होगा तो डैश का मकसद क्या है? डैश वी यूज डैश फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? डैश इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिफिनीशन। तो आप लोग तो टेक्निकल टर्म्स है वो आप लोगों ने थोड़े सीखने हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें, लेट्स स्टार्ट दिस वन, द नेक्स्ट वन। इसमें आप देखें कि ओके क्वेश्चन, लेट मी चेंज, या व्हाट इज, ऑलराइट। अच्छा, ये देखें सवाल को। तो सवाल में आप खुद देखें कि मतलब किस चीज को हमने ढूंढना है, व्हाट वी वांट टू लुक फॉर। Reason, sir. रीजन कहां से पता Reason. चल रहा है? रीजन का, Reason. एक्सलेंट। अब नीचे, अब रीजन किस चीज के लिए आप लोगों ने पहले, अच्छा मुझे ये बताए, जो मैंने शुरू में कहा था आप लोगों को कि रीजन हमेशा याद रखे कि रीजन जितने भी आएंगे आपके पास, तो यहाँ पे तो रीजन लिखे, लेकिन वहां पे प्रॉपर रीजन होंगे कि नहीं? एक्सप्लेन हो गया ना? Yes, sir. रीजन वुड बी प्रॉपरली। अब रीजन का synonym ना ढूंढे, डोंट लुक फॉर द synonym, लुक फॉर व्हाट यू आर सपोज टू लुक फॉर द प्रॉपर रीजंस। तो अब रीड करें कि द क्वेश्चन इज अ रीजन व्हाई अर्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेल्ड कमर्शियली। कमर्शियली वो क्यों फेल्ड हुए? आप रीड करें पैसेज को, मुझे बताएं कि कौन कौन सी रीजंस की वजह से वो रीजंस फाइंड आउट करें पैराग्राफ में। The शाबाश, limited range the of The limited early range limited range of वेरी early गुड, battery technology. एक्सलेंट। हावेवर ये देखिए, अब अच्छा शुरू में देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये टॉपिक Yes, sir. सेंटेंस है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Have. तो अगर टॉपिक सेंटेंस को अगर आप देखें तो टॉपिक सेंटेंस तो आपको मतलब जवाब नहीं दे रहा ना। Yes, sir. अगर आप टॉपिक सेंटेंस पे फोकस करें तो टॉपिक सेंटेंस इज वेरी पॉजिटिव, राइट? Yes, sir. वो कह रहे द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ट इन 1890s वर इनिशियली पॉपुलर। तो पॉपुलर है, ठीक है, उसने तो रीजंस Yes, के sir. बारे में कुछ कहा ही नहीं है। तो ये एक डिस्ट्रैक्टर है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि टॉपिक सेंटेंस से आपका जवाब नहीं आए। वे यू विल गेट इन द डिफिनीशंस, एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इसके बाद है हाउएवर। तो अच्छा मुझे ये बताए, मैंने कल कहा था ना कि हमेशा याद रखे कि जो भी सेंटेंस आपको मिले उसके बाद जो आने वाला वर्ड है उस पे फोकस करे कि जो कंजंक्शन यूज हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मतलब ये नेगेटिव Yes, है ना, sir. हावेवर है, कंट्रास्ट है। तो ये जो Yes, sir. पीछे Contrast वाला है. सेंटेंस ये क्रॉस हुआ कि नहीं? ये हुआ. Yes, sir. एग्जैक्टली, लिसनिंग में भी यही सीन है, लिसनिंग में भी यही सीन चलता है। एक बार वो मतलब वो चेंज ऑफ माइंड वाला गेम है, ठीक है, चेंज ऑफ माइंड। तो Yes, यहाँ sir. पे मतलब जो है चेंज ऑफ माइंड। अभी हावेवर द लिमिटेड रेंज, रेंज तो है लेकिन लिमिटेड है, नेगेटिव हुआ कि नहीं? इट्स नेगेटिव Yes, sir. हुआ. of early battery technology, rarely more than 30 miles per charge, more than impractical long journeys, and by 1990s, the internal combustion engine had, अब देखिए, had driven them almost entirely from the market. Market. तो मार्केट का मतलब ये कमर्शियली, कमर्शियल से बाहर निकाल दिए। Commercially So failed. that's why we understand that yes, the correct answer can be, we can quite easily find here. तो रीजन की बुनियाद पे हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि डिकोडिंग का मैंने भी तरीका आपको बताया ना वहां पे। अब इसका देखे, अब इसमें देखे किस डिकोडिंग सबसे पहले आप लोगों ने किस चीज का करना है कि मैंने क्या लुक, आई लुक आफ्टर फॉर व्हाट? example. Example. एग्जाम्पल, Examples. एक्सलेंट। लेकिन एग्जाम्पल तो है, मेरी बात सुने सब, एग्जाम्पल तो है, लेकिन एग्जाम्पल किस चीज से रिलेटेड है? बंदे से रिलेटेड है, मुल्क से रिलेटेड है, शहर से रिलेटेड है, किस Traffic. चीज से? Traffic एग्जाम्पल and इज city. रिलेटेड टू Traffic है. Sir. Traffic है. सिटी, City. राइट? तो एक्सलेंट, vehicles वगैरह भी आ जाएंगे उसमें. यस। एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी दैट हैज सक्सेसफुली रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। जिस Yes, sir. सिटी ने, तो वहां पे मतलब यहाँ पे सिटी लिखा है, जनरल बात की हुई है ना, तो स्पेसिफिक वहां जी पे एक सर. सिटी का नाम मिल सकता है आपको। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, many European capitals have attended to clear to curb what? Private cars। तो ये यहाँ पे देखिए टॉपिक सेंटेंस है कि नहीं? Yes, इसका sir. Yes, तो हमें sir. जवाब नहीं मिल रहा। अब इससे, अब इसके बाद मतलब रीड करें, शाबाश। Sir.
Stockholm congestion. सर इसके बाद जो है ना वही है सर आंसर। तो क्यों क्यों यहाँ पे देखिए सिटी का नाम कौन सा है? ये सिटी है Stockholm. ना? Stockholm's conjunction. Yeah, Yes, sir. there's a capital of, I think, there's the capital of Germany, if I'm not wrong. Okay, so that's the capital. So now we found that's about the Specific city name. city. Stockholm's congestion clear charge system introduced. कब ये introduce हुआ था? This year. 2007. 2007. Reduced peak hours city center traffic by roughly 22% within 18 months. तो ये मतलब सक्सेसफुल हुआ है ना? Yes, sir. और ये सिटी का नाम भी है. So that's why we understand this is the correct answer. तो decoding will help you, okay? Decoding will really help you out. अब इसे देखें. सबसे पहले आप लोग देखें कि किस चीज यहाँ पे सवाल को डिकोड करें. डिकोडिंग का मतलब जो सिग्नल मिल रहा है वो किस चीज का है? Comparison हुआ है. वेरी गुड. कंपैरिजन हुआ है किस चीज के दरमियान? कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? टू मेथड्स ऑफ Renewable energy में अच्छा two मेरी बात से letters दिखाए गए हैं. अब तो माशाल्लाह आप लोग मतलब बचे नहीं है बिकॉज यू हैव टेकन क्लासेस क्लियर. तो इन लोगों ने लिखा है टू मेथड्स. तो ये जनरल है कि नहीं? General है, sir. वी विल लुक फॉर व्हाट? फॉर Yes, स्पेसिफिक. for the एक्सेलेंट. तो specific method. जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. कंपैरिजन बिटवीन टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी. रीड करें सवाल को प्लीज. सबसे पहले टू मेथड फाइंड आउट करें कि कौन कौन से मेथड्स है. सर एक सोलर इंस्टॉलेशन है और दूसरा wind farm है. Wind farm. Wind farm. कौन कौन से हमारे One is पास? wind. One is सर एक wind सोलर farm. इंस्टॉलेशन है और दूसरा Solar. wind farm है. ठीक है. गुड. तो यहाँ सोलर इंस्टॉलेशन आर जनरली चीपर. ठीक है ना? वेरी गुड. सोलर. और दूसरा कौन सा है? विंड है. Yes, sir. ठीक Wind है. है. विंड फार्म्स हाउएवर produce electricity more consistently through the night and in winter months. तो अब सबसे पहले तो कंपैरिजन हो रहा है. देखिए कि कंपैरिजन बिटवीन टू. अब इन लोगों ने क्या लिखा है इसके बाद? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विंड फार्म्स हाउएवर. तो कौन कौन मतलब अच्छा? लुक यहाँ पे जो सोलर है, सोलर किस चीज के रिलेटेड अच्छा है और विंड फार्म किस चीज के लिए अच्छा है? सर wind farm इलेक्ट्रिसिटी के उससे अच्छा है और सोलर जो है वो प्राइस के लिहाज से अच्छा है. वेरी गुड. सोलर आर जनरली चीपर. कैन यू सी? Or Yes, wind sir. farms produce electricity more consistently through night and winter months. जी सर. समझ रहे? Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे सोलर का जो आउटपुट फॉल होता है तो यहाँ पे विंड जो है वो बेहतर काम करके दे रहा है. तो मतलब दोनों का कंपैरिजन हुआ है कि नहीं? अब अगर मैं आपसे किसी बंदे से पूछूं कि अच्छा भाई कंपैरिजन, तो किस चीज के पीछे भागेगा? उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हाउ शुड आई कंपेयर, राइट? Yes, sir. तो ये पहले थोड़ा इसलिए मुश्किल था क्योंकि आप लोगों का जो तरीका था वो थोड़ा दुरुस्त नहीं था. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. अब इसे देखें. अ फाइंडिंग दैट कंट्रोडिक्ट्स आया. कंट्रोडिक्शन क्वेश्चन है कि नहीं? सिग्नल कौन Yes, से है? sir, है. कंट्रोडिक्शन से रिलेटेड है. Contradiction का है. यस. सो अ फाइंडिंग दैट कंट्रोडिक्ट्स अ वाइडली हेल्ड बिलीफ. तो मतलब जो वाइडली हेल्ड बिलीफ है उससे उसके साथ जो अभी फाइंडिंग है, द न्यू फाइंडिंग, इट हैज कंट्रोडिक्शन विद दैट. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट कि कौन कौन से पॉइंट में इन लोग का कंट्रोडिक्शन है. सर न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनका कार्डियोवैस्कुलर मेथोडोलॉजी के बारे में जो बात की गई है उनके दरमियान कंट्रडिक्शन है. अच्छा ये कह रहे फॉर डिकेड्स या advised nutritionists Nutritionist. advise the public to avoid dietary fat Dietary is the fat. principal cause of heart disease. Heart disease. तो हार्ट डिजीज का मतलब ये कह रहा है किस चीज को अवॉइड करे? फैट्स को. ठीक है. लेकिन अभी क्या कह रहे? 2014 में क्या हुआ? एनालिसिस ऑफ मोर देन 60,000 Participants have थाउजेंड है found कि no लाख है? Yeah, 6 lakh participants, however, found no statistically significant link between. तो अब मुझे बताइए कंट्रोडिक्शन है कि नहीं? यहाँ पे तो ये कह रहे थे कि मतलब ये sir. मसला है, हर डिजीज का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे वाइडली ये, अच्छा मुझे बताइए ये वाइडली हेल्ड बिलीफ कौन सा वाला हुआ?
ये फैट्स वाला हुआ ना कि जो हर डिजीज बिलीव, लेकिन अ न्यू फाइंडिंग अभी कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं इसके साथ, एम आई राइट? जी सर 2014 finding, sir. कि नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आया Exactly. So this is how like we understand now there is contradiction between both of them. मतलब it's a comprehension, आपने understand करना है, then you can perform very well. Number 6, statistics and figure question है। अब देखिए इसमें proportion का नाम आया कि नहीं, यस सर। फिगर आया कि नहीं, फिगर proportion, या मतलब परसेंटेज आ जाए, ठीक है, मेजॉरिटी आ जाए, हाफ ऑफ पॉपुलेशन, ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो अब देखिए, अ फिगर शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक दैट इज रिसाइकल्ड। तो आप लोग को पता चल रहा है ना, ऑफ द एस्टिमेटेड 8.3 मिलियन, 8.3 बिलियन। तो ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है कि नहीं है? So this is how like Yes, people sir. you're supposed to understand, okay, कि ये statistics से related चीज है, तो you can understand this can be the right answer. अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, then we will take practical example, okay? यस सर। So now after this, let's take an example for that. अच्छा जी, ओह माय गॉड। अब आ जाइए आप लोग। सबसे पहले अब ये देखिए कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि या हेडिंग्स है? Information. इंफॉर्मेशन। ये एनबी आप लोग को नजर आ रहा है? ये इसका क्या है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अगर जब भी आपके पास एन बी आ जाए, एंड इफ दे हैव गिवन यू द इंस्ट्रक्शन दैट यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ द लेटर्स विल बी यूज्ड मोर देन वंस। मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए बैड आउटकम्स लिखा है कि नहीं, बैड आउटकम्स सर ये स्लाइड तो खाली है आपको नजर नहीं आ रहा? सर। हाँ Maximize the full screen maximize. खैर खैर, Please, sir. Please, sir, zoom a little the screen. वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी शो यू। अब आप देखिए, नजर आ रहा है? Screen में share ना। डबल क्लिक करें सर नॉट येट सर। यस सर। सर हुआ? अभी शो। यस Yes. सर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शंस को कि ये कौन से टाइप, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस है। और फिर यहाँ पे एनबी लिखा है, तो एनबी का मतलब कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ऑप्शन मतलब एक बी पैराग्राफ में भी आ सकते हैं, समझ रहे? हालांकि ऐसा Yes. मैचिंग हेडिंग में ऐसा नहीं है, दैट्स टोटली डिफरेंट। एंड मैचिंग हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट्स टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे मतलब ये मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि वही तरीका होगा जो कल हमने अपनाया था। पहले सबसे पहले आप लोगों ने इन ऑप्शंस को क्या करना है, थोड़ा रीड करने, अंडरस्टैंड करने कि इसमें क्या पूछे जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, बैड आउटकम्स, फॉर हुम और फॉर व्हाट, फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। when people focuses only on its financial reward, फाइनेंशियल रिवार्ड। मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ उसके फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे फोकस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई फॉर द फॉरेस्ट क्लियर देयर इज अ बैड आउटकम। अनदर पॉइंट इज द सेकंड, रेफरेंस। अब रेफरेंस है कि नहीं है, मतलब रेफरेंस का मतलब क्या है, Yes, sir. एग्जांपल क्लियर, रेफरेंस टू द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट, एनी ट्री, reference to the aspects of any tree that जनरलाइजेशन that हुआ। contribute to its worth. It's for या तो आप लोगों ने मतलब हर एक पॉइंट को थोड़ा जल्दी जल्दी फाइंड आउट करने की इसमें क्या पूछा जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं मेंशन ऑफ पोटेंशियल यूज, मेंशन ऑफ द पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू हेल्प रन व्हीकल्स। अच्छा, तो मतलब ये वुड लिखा है कि नहीं, मतलब ये जनरल sir. है, तो शायद कि वहां पे स्पेसिफिक वर्ड आपको मिल रहा हो जो हेल्प कर रहा है किस चीज में, रन व्हीकल। व्हीकल्स के रन होने में। या एंड फिर इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नहीं, यस सर। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जो मिले शायद कि ये जनरल हो और स्पेसिफिक भी हो सकता है, दैट अटैक व्हाट, ट्रीज। कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स है कि अटैक कर सकते हैं किस चीज पे, ट्रीज पर। ठीक सर। एंड देन लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर, अच्छा अल्टरनेटिव है
alternative name for what? For tree that produce what? For Low. trees. Yes, that produce low use wood. Alternative name for trees. मतलब एक तो ये एक ट्रीज है उनके लिए अल्टरनेटिव कि मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वुड लेकिन वो क्या है लो यूज वुड. अच्छा, so let's move on towards the passage. First of all, we need to read the first paragraph number 1 quickly. Paragraph number 1 पे आप फोकस करें कि किस में क्या पूछा, इसमें क्या कह रहा है. शाबाश. सर ये ट्री के बारे में है सर. एन अल्टरनेटिव, ये जो लास्ट वन है. Okay. Cherry tree has high value as timber to be cut into logs or made into furniture. But for टिम्बर और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए भी ये ट्रीज जो है ना इस्तेमाल होते क्या हैं. ना सर, ये एन अल्टरनेटिव. अच्छा, अल्टरनेटिव के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? बट But. Okay, good. ठीक है, शाबाश. Likewise also. इधर दो एग्जांपल भी दिए हुए हैं ना. Okay. A large straight black cherry tree has high value as timber to cut into logs or made into furniture. But for Good. a landowner more interested in wildlife habits. ठीक है, Habitat. that's good. सर इधर दो एग्जांपल भी दिए हैं ना, तो उधर वही है ना एन अल्टरनेटिव के जो आपने जो लो यूज वुड के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, जैसे इफ की जो देखिए लाइकवाइज इफ द ट्री सफर, तो इफ उसका फ्रॉम हो ब्लैक गया नॉट डिजीज. या ठीक है. तो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, वैल्यू ऑफ द टिम्बर डिक्रीजेस. टिम्बर इज वुड एंड डिक्रीजेस मींस कि वो लो यूज में आ जाता है. तो So किन किन 18 को अब समझ आ रहा है कि मतलब दैट्स फॉर अल्टरनेटिव नेम फॉर ट्रीज दैट इज ए. हु बिलीव्स सर दैट? मी सर शहरयार. ओके, sir. एनीबडी एल्स? मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है. लगता नहीं है, Means. लगने का. देखे, हेलो, देयर आर टू वर्ड्स. ओके, नोइंग एंड गेसिंग. दो वर्ड्स है. कितने वर्ड्स है? दो. नोइंग एंड गेसिंग. नोइंग, हमें नोइंग पे काम करना है, गेसिंग पे काम नहीं करना. आपको लगता है नो, नो, that's what we don't want. What actually we want from you, that is कि you understand. जब आप अंडरस्टैंड करें इसका मतलब है कि आपको समझ आ रहा है. तो गेस पे नहीं, गेसिंग पे आपके 5.5 से ऊपर बैंड नहीं आ सकते. नोइंग पे आपके बैंड अच्छे आ सकते हैं. That you know what I read. और इसके वैल्यू के बारे में बताएं. ये फर्स्ट टू लाइंस नहीं, ये फर्स्ट पैराग्राफ. ये या गोल्स फॉर फॉरेस्ट. ठीक है. वैल्यूज भी है ना, quality, function and accessibility, and depends on the management goals for a given forest. ठीक है. Anybody else who wants to explain it? Hello. सर थोड़ा सा जूम सर सर नीचे जो है ना, यहाँ पे कह रहे कि अगर इसमें ये ऑप्शंस को देखे आप लोग डिसीज हो गौर जाए. से. सर लो यूज का कह रहे हैं ना, तो इसमें ये मतलब कि पीस ऑफ आर्ट के लिए तो ये कोई बड़ा फर्नीचर का ये तो नहीं है ना, तो ये छोटे पर्पसेस के लिए भी यूज होता है. तो ठीक नीचे है. इसमें ये भी लिखा है बॉल्स एंड पीस ऑफ आर्ट. अच्छा, लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. ठीक है. ये कह रहे ऑप्शन नंबर ए कि अ ट्री वैल्यू डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्या, साइज, ये चीजें. ठीक है. मतलब ये तो इसके क्या हुआ यहां से, तो मतलब आपको पता है कि मतलब वी डोंट गेट आंसर, राइट. मैं रीड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सही बेहतर तरीके से समझ आ जाए. ये कह रहा है कि लेट मी मूव इट हियर. A tree value depends on these things, right? Function, accessibility, and depends on the management goals for giving forest. अब हमने क्या करना है कि if you just keep reading it, the same tree can be valued very differently by each person who looks at a large straight black cherry tree has high value as timber to be cut logs of this into furniture. But for a landowner more interested in wildlife habitat, the real value of that stem or trunk may be
the food it provides to animals. Likewise, if the tree suffers from black, अच्छा मुझे ये बताइए कि Sir, alternative 17 answer. क्या? Sir, example of insect that attack trees. जो हम्म disease को. अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मैं अभी आप लोग को क्लियर कर रहा हूं, देखिए लेट मी ब्रिंग इट द ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखिए बेट Yes, sir. आउटकम्स के बारे में कुछ है? No, sir. No, sir. नहीं है, right? We don't have anything related to bad outcomes. Point number 1. Number 2, reference to the aspects of any tree that contribute to its worth. Sir, What इसमें do भी you think थोड़ा about है this? जी, इसमें भी थोड़ा सा No, वो sir. है सर, क्योंकि रेफरेंस वो दिया है ना चेरी वाला। रेफरेंसेस दिए हुए ना, काफी रेफरेंसेस है इसके बारे में। अच्छा, sir. एक आप लोग का शक इस 15 पे और दूसरा 18 पे, राइट? 18. Yes, sir. Yeah. अच्छा, an alternative name for trees that produce low use wood. क्लियर? अब अल्टरनेटिव नेम तो नहीं इस्तेमाल किए, ये क्या है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि ये 15 हो सकता है। Yes, sir. 15 किया है। रेफरेंस टू द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्री दैट Yes. कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्थ। तो मतलब देखे, द Yes. सेम ट्री, एनी Yes, ट्री, sir. द सेम ट्री मीन एनी ट्री दैट कैन बी वैल्यूड वेरी डिफरेंटली। मतलब इसके एस्पेक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं ना, by each Yes, sir. person who looks at it. मतलब अगर एक large straight black cherry tree has value as timber to be cut, clear, logs or made into furniture. मतलब अगर इसे फर्नीचर बनाना चाहते तो अलग होगा, ठीक है ना? अगर और ये but for a land owner more interested, ये बंदे किस चीज में इंटरेस्टेड है? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, मतलब कि उसके लिए मतलब घर वगैरह बन जाए। रियल वैल्यू ऑफ दैट स्टेम ट्रंक may be the same food, clear, it provides animal. Likewise, if the tree suffers from black not disease, its value for timber decreases. अब इसके value decrease होगा, but for a woodworker interested in making balls, it brings an opportunity for a unique and beautiful piece of art. तो अब देखिए कितने मतलब इसके aspects है, मतलब एक चीज के काम तो नहीं आ रहे ना। Yes, sir. So that's Sir, why we अगर can इस say, तरह सर आप देखे होंगे ना सर, इस तरह दो चीजें दो आंसर सर वो सेम आते होते हैं, तो उसमें हम सर अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर सर क्या तो करेंगे? आप देखें ना, यहाँ पे तो यूज के बारे में तो, यहाँ पे प्रोड्यूस लो यूज वुड, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है ना। सर मैंने और बहुत प्रैक्टिस अल्टरनेटिव नेम, अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नेम फॉर ट्रीज है? वो तो वही No, ट्री के sir. बारे में, ट्री के बारे में सेम बोल रहे ट्री हैं कि है ना इसके सर? मतलब क्या, कहाँ पे इस्तेमाल कहाँ पर है। यस सर। मतलब क्योंकि यहाँ पे वर्थ, क्योंकि एक जगह से एंड दे हैव क्लियरली मेंशन अबाउट द वर्थ एज वेल। और सर लेकिन इधर ये clip में भी देखे ना, फॉर ट्रीज दैट प्रोड्यूस, तो या प्रोड्यूस से तो थोड़ा सर उधर शक आ जाता है कि शायद इधर वो प्रोडक्शन के बारे में कह रहा है, तो उधर वो लेकिन आप यूजेज शुरू में देखे अल्टरनेटिव नेम फॉर ट्रीज, आप वहां पे तो नेम तो अलग नहीं है, वो तो एक ट्री के बारे में बोल रहे हैं ना। यस सर। सर समझ रहे? ब्लैक चेरी के बारे में भी तो बोल रहे थे ना, क्या? कोई ब्लैक ट्री है? चेरी। तो वो एक ही ट्री है ना, द सेम ट्री लिखा है ना मैम, इन लोगों ने क्या लिखा है? द सेम ट्री, क्लियर, द सेम ट्री। सर अब आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, दूसरे पे आ जाए, दूसरा वाला देखिए प्लीज। नाउ स्टार्ट रीडिंग द सेकंड वन, पैराग्राफ नंबर बी। Okay, माइक प्लीज, जिनके पास कोई Sir, तो जी this is जी। alternate name for the Alternative name है sir. अच्छा, अल्टरनेटिव trees. नेम है, कहाँ से आपको पता चल रहा है? इन द पास्ट, उस ट्री का नाम ये solely भी कहा कि interested in the value of their trees as high quality as this. The norm was to remove the stem of highest quality, leave behind poorly clay-formed trees were not as well as suited for the site of their grew. Okay, this practice called what? High High grading grading. High has left grading. a legacy सर मैं एक of बात low-use कहूँ wood. सर, जी Yes, जी। sir. सर आप क्योंकि कह रहे थे कि सीधा अगर वो इस तरह का वर्ड आ जाए ना तो ये हाँ ना ट्रैप सर। होगा, तो लो Yes, यूज वर्ड यहाँ पे आया है yes. तो ये तो ये ट्रैप है ट्रैप हो अच्छा, सर। सकता है। लेकिन zoom लेकिन out कौन हाँ, सा कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे है कि मतलब इन लोगों ने जो वर्ड इस्तेमाल हुए, लो यूज वर्ड, ठीक है, ये तो चेंज भी नहीं कर सकते ये लोग, दे कांट चेंज।
they will Trying use to exactly the word. same. It's a technical term है. ये इस्तेमाल में मतलब वही इन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है. लाइक जैसे हम आइल्स पढ़ रहे तो आइल्स के लिए इंग्लिश टेस्ट नहीं कह सकते. तो सर एक ये पॉइंट इस आगे जी आगे ये सेंटेंस देखे सर, इधर से भी पता चल रहा है, these अच्छा trees have lower economic value for traditional एग्जैक्टली timber ये हम market अब for पढ़ना wood. चाहते हैं. हम पढ़ना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश. एवरीबडी शुड रीड इट प्रॉपरली. ठीक है. Was to remove the ये तो यहां तक. This practice called what? High grading has left legacy of what? Low use wood and the forest. Some people even call these junk trees. इन्हें दूसरा नाम दिया कि नहीं? Yes, sir. In alternative 18 वाला option. they are मिला है Alternative कि नाम नहीं? दिया है। अल्टरनेट अच्छा यहाँ पे Yes, sir. अल्टरनेटिव नेम मिले कि नहीं? मिले ना? मिला Yes, है। sir. Sorry. Yes, That's sir. what like तो मतलब ये क्या अल्टरनेटिव नेम है? Can you see? 18 option. Yes, And sir. they Yes, are sir. abundant. These trees have lower economic value. इसकी वैल्यू क्या Yes, थी? sir. लोअर. यहाँ और भी इसको लोअर का भी कहा है. Exactly. Lower. Compete for the growth and higher value trees, shade out desirable generation and decrease the health of. अच्छा आप लोग खुद बताइए यहाँ पे मतलब बार बार ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. But they have used Yes, the sir. alternative name for that. Yes, So what do you think like कौन से किस चीज के The लिए alternative इस्तेमाल? word for trees. Yes, sir. 18. अच्छा 18 एक मतलब option. 18 do ही you है. think like ये तो इसके लिए तो आया. ठीक है. बी ऑप्शन, बी नंबर. Yes, sir. ठीक है. इसके अलावा आप तो देखिए उसके लिए ए आ जाएगा, रेफरेंस टू द और क्या है. एस्पेक्ट्स. अब इस पे देखे मतलब सिर्फ एक नहीं है, इसमें दो बातें इस बंदी ने की है. अब देख ले. नंबर 1, the norm was to remove the stem of highest quality and leave behind poorly formed trees that were not as well suited for the site where they grow. Yeah, this practice called this. And some people even junk, and they are abundant, and these trees have lower economic values. इसके इकोनॉमिक एंड मार्केट वैल्यू क्या है? लो है. Lower है. या तो मतलब अगर लो क्या करे यहां से बैड आउटकम्स फॉर व्हाट? फॉर फॉरेस्ट. Bad outcomes व्हेन for a पीपल tree. फोकस Yes, ओनली sir. ऑन इट्स व्हाट, ये इनकी वैल्यू क्यों कम हो रहा है यहाँ पे? Why do you think like why the value has been decreased? ये देख रहे हैं ना यहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं? The norm was to नॉर्म्स remove भी the stems आउटकम है. of highest quality and Yes, sir. leave behind Behind poorly poorly formed formed trees trees. that were not Yes, as well suited for the site where they grow. This practice called what? High grading has left a legacy of low use wood and forest. अच्छा जो देखे ना, मैंने कहा था ना आप लोगों से ये लो ये पहले वाले ऑप्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है जहां पे इसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं है. Some people even call it junk and they are abundant. These trees have lower economic values for traditional timber markets. समझ रहे? तो ये लोग खुद ही मतलब इससे